وہ اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے موت 7 سمندر پار تیار غیر میں آئی، لیکن اس کی روح کو چین نہ ملا اور آخرکار وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور 2 مجرموں کو آلائے کار بنا لیا۔ ایک شخص کی کہانی جو اپنی لاش اسمگل کروانا چاہتا تھا۔ میں نے جرائم کی دنیا کس طرح اپنائی، یہ ایک طویل کہانی ہے اور ان بے شمار عام کہانیوں سے مختلف نہیں ہے جو مجھ جیسے انسانوں سے منسوب ہوتی ہے۔ تعارف کے طور پر اتنا بتا دوں کہ میرا تعلق ایک شریف لیکن غریب گھرانے سے ہے، اور میرے والدین نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی اولاد کو بڑا بنانے کی کوشش کی۔ یہ چھوٹے لوگ اپنی اولاد کو بڑا بنانے کے لیے جو جتن کرتے ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ عام طور سے ان کی جدوجہد کی داستان ان کی قبر کے کتبوں پر کندہ ہوتی ہے، اور اس جدوجہد میں ناکام ہو کر قبر کی گہرائیوں کو اپنا لیتے ہیں۔ میرے باپ نے بھی مجھے بڑا آدمی بنانے کے لیے اپنی زندگی چھوٹی کر لی۔ سخت اور انتھک جدوجہد نے اسے ٹی بی کا مریض بنا دیا اور وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کا خون تھوک تھوک کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کے خون تھوکنے کی باری ہوتی ہے، سو میں نے بھی ابتدا میں خون تھوکا، لیکن بہت جلد میرا مرض دور ہو گیا۔ یہ شرافت کا مرض بھی عجیب ہوتا ہے، آدمی کو بالکل ناکارہ کر دیتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا کم بخت۔ لیکن مجھے حکیم احمد خان مل گیا، ماہر جیب تراش، نقب سند، چھوٹے موٹے جرائم کا ماہر۔ لوگ اسے کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن میں اسے اپنا حکیم ہی تصور کرتا ہوں۔ اس نے میری ناکامی کا مرض دور کر دیا اور مجھے اپنی لائن پر لگا لیا۔ چنانچہ ابتدا میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے کی، لیکن احمد خان جاہل تھا اور میں تعلیم یافتہ، پھر میں اس سے زیادہ ذہین کیوں نہ ہوتا۔ پھر میں نے اپنی ذہانت سے جرائم کی نت نئی راہیں نکالی اور لوگوں کے لباس ٹٹولنا چھوڑ دیے، گھروں میں گھسنا چھوڑ دیا۔ میں دوسرے جرائم کرتا تھا، ایسے جرائم جن میں ذہانت کارفرما ہوتی تھی، اور بہرحال ایک درمیانہ درجے کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بدقسمتی تھی، جب عیش کی زندگی ملی تو تنہا رہ گیا تھا۔ ماں بھی مر گئی اور اس دنیا میں ماں کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ زندگی کسی قدر بدمزہ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس بدمزگی کو دور کرنے کے سہارے تلاش کیے، اور نہ جانے کیوں تقدیر میرے اوپر مہربان ہو گئی۔ میری اس تقدیر کا نام نیما تھا، مقامی عیسائی لیکن رنگ و روپ انگریزوں کی مانند۔ سنا ہے اس کی ماں 6 سال انگلینڈ میں رہی، جو ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ وہاں سے آئی تو نیما اس کے ساتھ تھی، اور اس کا سیاہ فام باپ جوزف۔ بہرحال مجھے نیما کے ماضی اور اس کے خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو نیما سے پیار تھا، اور وہ بھی دل و جان سے مجھے چاہتی تھی۔ کیوں نہ چاہتی، میں اس کے پورے خاندان کی پرورش کر رہا تھا۔ BA تک تعلیم میں نے ہی تو مکمل کروائی تھی، ورنہ اس کا باپ جوزف شراب پینے کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کے قابل ہی کہاں تھا۔ ابتدا میں اپنی ذہانت سے میں نے نیما کو اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہونے دیا، لیکن محبوب سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ نیما سخت پریشان ہو جائے گی، رو رو کر مجھ سے کہے گی کہ میں برائی کے راستے چھوڑ دوں، کہیں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لیکن نیما ایک روشن خیال لڑکی تھی، وہ دقیانوسی اور فرسودہ روایات سے دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مسعود، اس دنیا کا دھندا ایسے ہی چلتا ہے، تم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہے؟ تو نیما تم اس بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئی؟ میں نے خوشی کے عالم میں کہا، میں جاہل نہیں ہوں مسعود، اس دنیا کو بہت قریب سے جانتی ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، وہ یہ کہ خود کو محفوظ رکھ کر کام کرو۔ اس سلسلے میں تم فکر مت کرو، میں خود بھی زندگی کے اس رخ سے دلچسپی رکھتی ہوں۔ اگر تمہیں کبھی ایک صحیح ساتھی کی ضرورت محسوس ہو تو گویا نیما، میں نے دلچسپی سے پوچھا، تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، نیما نے جواب دیا۔ واقعی؟ میں نے خوشی کے عالم میں پوچھا۔ خلوص دل سے، خوشی اور تو حسین محبوبہ اور حسین ساتھی۔ میں نے اس حسین ساتھی سے پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور نیما کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میں نے اس کی حیثیت ہمیشہ محفوظ رکھی، میں نے اسے خطرناک کاموں میں استعمال نہیں کیا، لیکن اس سے ایسے کام لیتا رہا جن میں اس کی ذہانت براہ راست کبھی نہ ملوث ہو۔ میں نے اسے ایک نمایاں مقام دیا، خود اس سے دور رہ کر اسی سوسائٹی کا ایک اعلیٰ مقام دیا، اور اعلیٰ مفاد کو اپنے مفاد میں دوسرے طریقے سے استعمال کیا۔ ایک چھوٹے سے سلسلے میں نیما نے میری ضمانت بھی کروائی، لیکن میں ذرا کم ہی پھنسنے والوں میں سے ہوں،
तो ये है मेरा और नीमा का तारुफ। हर इंसान की जिंदगी यूं तो वाकयात और हादिसात का मजमुआ है, और फिर खास तौर पर हम जैसे लोगों की तो बात ही और है। हमारी जिंदगी काफी तेज होती है। आम जिंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियां मुख्तसर होती हैं, बस एक डगर पर चलना। लेकिन तो मैं अपनी जिंदगी का एक अहम वाकया सुनाने जा रहा हूं। बिलाशुबा ये कहानी मेरी और नीमा की जिंदगी की अनोखी कहानी है। उन दिनों कोई खास मसरूफियत नहीं थी। नीमा के पास एक खूबसूरत कार थी, एक हसीन बंगला था, उसका छोटा सा कारोबार था। ये सारी चीजें उसे मैंने मुहैया की थीं, लेकिन मैं खुद एक दरमियाना दर्जे के फ्लैट में रहता था जो किराए का था। यहां आम सा फर्नीचर था, और यह सब कुछ इसलिए था कि लोग मेरी तरफ से मशकूक ना हो। मैं और नीमा अक्सर लंबी ड्राइविंग पर निकल जाते थे। उसके वालिदैन को मेरे उसके साथ पर कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी बना दी थी। उस रात हम ग्लिनिंग पॉइंट से वापस आ रहे थे। ये आला दर्जे का रेस्टोरेंट था, जिसमें आला दर्जे के लोग ही जाते थे। रात के तकरीबन 11:15 बजे थे। सरे शाम ही हम एक क्लब पहुंच गए थे और वहां की तफरियात में हिस्सा लेते रहे थे। नीमा ड्राइविंग करते करते होले होले गुनगुना रही थी कि अचानक उसकी गुनगुनाहट रुक गई और उसके साथ कार की रफ्तार भी सुस्त हो गई। क्या है? मैंने चौंक कर पूछा। शायद कोई हादसा? क्या मतलब? मैंने आंखें फाड़कर सड़क पर देखा। कार कुछ और आगे बढ़ गई और रोशनियां एक वजूद को उजागर करने लगीं जो सड़क के दरमियान पड़ा हुआ था। ओह, शायद कोई उसे टक्कर मारकर चला गया है। हाँ, बुराइयों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, नीमा ने कहा और कार किनारे करके रोक दी। फिर दोनों दरवाजे खोलकर नीचे उतर गए। अगर कोई इस वक्त हमें देख ले तो इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेगा कि हमने ही इसे जख्मी किया है। बिलाशुबा, लेकिन इस खौफ की वजह से इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। मुमकिन है यहां से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने भी इसे देखा हो और यही सोचकर आगे बढ़ गए हों कि कहीं कोई मुसीबत उनके गले न पड़ जाए, नीमा ने जवाब दिया। इस दौरान हम सड़क पर पड़े शख्स के करीब पहुंच गए और फिर उस पर झुक गए, लेकिन वो किसी कार या किसी दूसरी सवारी के हादसे का जख्मी नहीं था। यकीनन कोई और ही बात थी। उसके बदन पर उम्दा तराश की पतलून और कमीज थी। दोनों पांव सिमटे हुए थे। एक हाथ सीने पर था, दूसरा हाथ फैला हुआ था। फैले हुए हाथ में मोटी रस्सी का एक फंदा नजर आ रहा था। पांव के नजदीक $100 का एक नोट पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जिंदा है, नीमा ने सरसराती आवाज में कहा। हाँ, लेकिन जख्मी नहीं मालूम होता। मुमकिन है पुश्त पर जख्म हो, नीमा ने कहा और मैंने जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में पहन लिए। फिर मैंने उसे पलटकर देखा, लेकिन कमर पर भी कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था और नब्ज भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। अब? मैंने सवाल किया। इसे यहां तो नहीं छोड़ सकते? जाहिर है जब इतना किया है तो इसे किसी अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाए, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात कहूं मसूद? हाँ कहो। मेरे ख्याल में इसे अस्पताल ले जाना हिमाकत है। कोई जख्म वगैरह तो है नहीं, सांस भी नॉर्मल है, रस्सी और नोट पुरस्कार हैं। मुमकिन है किसी साजिश का शिकार हुआ हो और सिर्फ बेहोश हो। इन हालात में हम उलझन में फंस सकते हैं। फिर मैंने वहां पर नीमा की बात से इख्तलाफ किया। क्यों ना इसे हम घर ले चलें? होश में आने का इंतजार करेंगे, मुमकिन है इससे कुछ मालूमात हो जाए, नीमा ने तजवीज पेश की। ओके नीमा, तुम कार का दरवाजा खोलो, मैं इसे हाथों पर उठा कर लाता हूं, मैंने कहा और नीमा ने गर्दन हिला दी और फिर उसने झुककर नोट और रस्सी का अजीब व गरीब फंदा उठा लिया और नीमा कार की तरफ बढ़ गई। मैंने झुककर नौजवान को उठाया। दरमियानी जिसामत का एक स्मार्ट नौजवान था। मुझे उसे उठाने में दिक्कत नहीं हुई। नीमा ने अकबी दरवाजा खोल दिया था। मैंने एहतियात से उसे पिछली सीट पर लिटा दिया और फिर खुद उसके नजदीक ही बैठ गया ताकि उसे संभाल सकूं। नीमा ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। हाँ चलूं मसूद? हाँ जल्दी चलो, कहीं अकब से कोई दूसरी कार ना आ जाए, मैंने कहा और नीमा ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम्हें इसके जिस्म पर किसी जख्म का एहसास तो नहीं हुआ? नीमा ने मुझसे पूछा। बज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं है। बज़ाहिर से क्या मुराद है? मुमकिन है कोई अंदरूनी चोट हो नीमा, मैंने कहा और नीमा ने होंठ सुकेड़ते हुए गर्दन हिला दी। ओह हाँ, इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसने कहा था। तुम्हारे पास इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान तो मौजूद होगा नीमा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इसे होश में लाने की कोशिश करेंगे। जरूर, लेकिन किस्सा क्या हो सकता है? और मसूद, इस इम्कान का तुम जायजा तो लो कि रस्सी के फंदे से इसकी गर्दन दबाने की कोशिश तो नहीं की गई, नीमा ने अचानक कहा और मैं भी चौंक पड़ा। यह बात क़यास करीन हो सकती थी,
लेकिन अंधेरे में इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। गर्दन के निशानात तो हम रोशनी में ही देख सकते थे। मैंने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। हाँ, इस तरह मुश्किल है, मुझे फौरन एहसास हो गया था। नीमा मुस्कुराती भी बोली, क्यों? मेरा मतलब है तुम्हारी मम्मी और डैडी। डैडी तो जैसा कि तुम्हें पता है कि नशे में धुत पड़े रहते हैं। रही मम्मी तो वो हमारे किसी मामले में दखल नहीं देती। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मौका कभी आया भी नहीं, तो इस बात की फिक्र क्यों करते हो? नहीं, फिक्र की बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहा था। दरअसल फ्लैट इस मामले में बिल्कुल बेकार जगह है। वहां तो कोई राज ही नहीं रह सकता। सब एक दूसरे की खोज में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मेरे एक पड़ोसी तो तकरीबन हर तीसरे दिन मेरा इंटरव्यू लेते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा इंटरव्यू? नीमा ने पूछा। यही कि मैं क्या करता हूं, कितने आदमी हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, वालिदैन कौन से गांव में रहते हैं, वगैरह वगैरह। उन्हें तुमसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? भतीजी की वजह से। क्या मतलब? कोई भतीजी है उनकी और उसके वालिद एजेंट हैं। आज शादी करो, कल दुबई चले जाओ। कई बार कह चुके हैं। वो अपनी भतीजी को दुबई क्यों नहीं भेज देते? वैसे डार्लिंग, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूं कि फ्लैट छोड़ दो, और मैं कई बार तुम्हें इसका जवाब दे चुका हूं। तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी शख्सियत को मशकूक नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूं कि पहले तुम खूब दौलतमंद बन जाओ, ताकि एक दौलतमंद लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी भी आराम से गुजरे। मैंने हंसते हुए कहा, और नीमा भी हंसने लगी। उसी वक्त मैंने नौजवान की कर्राह सुनी और चौंक पड़ा। ओह, ये तो होश में आ रहा है, मैंने कहा। हाँ, अच्छा है, हम भी पहुंच चुके हैं, नीमा ने जवाब दिया। और थोड़ी देर बाद हमारी कार बंगले की पोर्च में रुक गई। मेरी निगाहें नौजवान पर थीं, जो अपनी गर्दन मसल रहा था और अब पूरी तरह होश में मालूम होता था। कार रुकी तो वो उछल पड़ा। उसने वहशतज़दा निगाहों से मुझे देखा और फिर अचानक उठने की जिद्दोजहद करने लगा। ओ भाई, बदहवास ना हो, तुम दुश्मनों में नहीं हो, मैंने नर्म लहजे में कहा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, तुम मुझे मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, वो खौफजदा लहजे में बोला, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ताकतवर आदमी, मैं तुमसे ताकत आजमाई नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारा मददगार हूं। हम दोनों ने तुम्हें सड़क पर पड़े पाया था और तुम्हारी इमदाद करने के ख्याल से तुम्हें ले आए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो चौंक पड़ा। दोनों ने? उसने सरासीमा लहजे में कहा। हाँ, मेरी मंगेतर और मैंने जवाब दिया। और उसने गर्दन घुमाकर नीमा को देखा। तब उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार फैल गए। वो उम्दा किस्म की अंग्रेजी बोल रहा था और अब उसके खदोखाल से अंदाजा हुआ था कि वो मकामी बाशिंदा नहीं है। ओह, वो दोनों, उसने कहा और फिर दोबारा गर्दन मसलने लगा। उनकी बात कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? मैंने पूछा और उसने गर्दन हिला दी। यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है, आओ अंदर आ जाओ, नीमा ने कहा। और नौजवान मेरा सहारा लेकर कार से नीचे उतर आया। उसकी टांगों में लड़खड़ाहट थी, इसलिए मैं उसे सहारा देकर अंदर ले आया। नीमा उसे अपने बेडरूम से मुल्हका कमरे में ले गई। यहां पर बिस्तर मौजूद था। उसने कमरे की रोशनियां जलाईं और नौजवान से बिस्तर पर लेट जाने को कहा। नहीं शुक्रिया, मैं बैठूंगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, उसने कहा और एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडी लाती हूं, नीमा ने कहा और मुझे वहां रुकने का इशारा करके बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो ब्रांडी की बोतल और गिलास लेकर अंदर आ गई। उसने नौजवान को ब्रांडी दी और वो एक ही दफा उसे हलक में उतार किया। फिर प्यासी निगाहों से बोतल को देखने लगा। और लोगे? नीमा ने पूछा और उसने गर्दन हिला दी। तब नीमा ने उसे और ब्रांडी दी। इस बार नौजवान ने उसके छोटे छोटे सिप लिए थे। फिर वो होंठ खुश्क करता हुआ बोला, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं। क्यों, यही कहोगे ना? नीमा मुस्कुराकर बोली। हाँ, तुम लोगों ने बेलौस मेरी मदद की है, जबकि इस मुल्क में मैंने बड़ी बेहिसी पाई है। कोई किसी का हमदर्द नजर नहीं आता। तुम मकामी तो नहीं हो? नहीं, मैं यूरोप का बाशिंदा हूं। हमारा भी यही ख्याल था। अब तुम्हारी हालत कैसी है? हाँ, अब मैं ठीक हूं। उन्होंने मेरी गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर दूर से कार की रोशनियां नजर आईं और वो फरार हो गए। शुक्र है वो कामयाब नहीं हो सके। क्या तुम्हें पुलिस की मदद दरकार है? मैंने पूछा। नहीं हमदर्द इंसानों, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं हूं कि पुलिस से मदद लूं। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूं।
नौजवान ने टूटे लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें और ब्रांडी दूं? नीमा ने हमदर्दी से कहा। जी नहीं शुक्रिया। क्या तुम अपना तारुफ कराना पसंद करोगे? मेरा नाम एलिस है, एलिस जिम। खूब, ये नीमा है और मेरा नाम मसूद है, मैंने कहा, और उसने एहसानमंद निगाहों से हम दोनों को देखते हुए गर्दन खम कर दी। एलिस, मेरा ख्याल है अब तुम इस बात से आगाह हो गए हो कि हमने सिर्फ इंसानी रिश्ते के तहत तुम्हारी मदद की है और इसमें कोई लालच पिन्हा नहीं है। हर इंसान जुस्तजू का मरीज होता है और हम दोनों भी इस मरज से अलग नहीं हैं। हमारे जहनों में तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक है, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि अगर अपने बारे में ना बताना चाहो तो ना बताओ, तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। ओह, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूं। तुमने वाकई मेरे ऊपर एहसान किया है, वरना यह भी मुमकिन था कि वो वापस आते और एलिस ने खौफ से आंखें बंद कर ली। लेकिन उन्होंने तुम्हें रस्सी से हलाक करने की कोशिश क्यों की? गैर मुसल्लह थे, लेकिन हर कीमत पर मुझे कत्ल करना चाहते थे। ताज्जुब है, लेकिन इसके पस पर्दा कोई कहानी तो होगी। हाँ, लेकिन तुम लोग। हाँ कहो, रुक क्यों गए? देखो दोस्तों, मैं खुलूस से दिल से कह रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन हाँ एलिस, आगे कहो। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? ओह, लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि मुझे गैर कानूनी तौर पर यहां लाया गया है। लाया गया है? हाँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह भी नहीं है। पहले मुझे मिडिल ईस्ट में लाया गया था और फिर यहां स्मगल कर दिया गया। ओह, लगता है जैसे तुम किसी खतरनाक गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हो। हाँ मेरे दोस्त, ऐसी ही बात है, एलिस गहरी सांस लेकर बोला। ठीक है एलिस, हम वादा करते हैं कि तुम्हें ना तो पुलिस के हवाले करेंगे और ना किसी को तुम्हारे बारे में बताएंगे। हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर ताउन करेंगे। ये ताउन गैर मशरूत भी है, मैंने कहा। ताज्जुब है? क्यों? इस मुल्क में मुझे तुम्हारे अलावा कोई हमदर्द नहीं मिला। मैं तुम्हारी इस हमदर्दी से बेहद मुतासिर हुआ हूं। कोई बात नहीं एलिस। हाँ, तुम्हारे नजदीक एक $100 का नोट भी मिला है। ओह, क्या नोट तुम्हारे पास मौजूद है? एलिस ने चौंक कर पूछा। हाँ, तुम्हारी अमानत है, ये लो। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया और एलिस उस नोट को बगौर देखने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, यही नोट मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं इन्हीं का शिकार हुआ हूं। वो कैसे? तुम रोशनी में इस नोट को देखो। उसने नोट वापस मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं नोट को बगौर देखने लगा। कोई खास बात नहीं है, एक आम नोट है। असली है? उसने पूछा। हैं? मैं चौंक पड़ा। इसे मैंने बनाया है, उसने जवाब दिया, और मैं और नीमा ताज्जुब से उछल पड़े। नीमा ने नोट मेरे हाथ से उचक लिया और उसे रोशनी में बगौर देखने लगी। फिर उसने शदीद हैरानी से कहा, मेरे खुदा, कोई बारीक से बारीक निगाह वाला ये बात नहीं कह सकता। ये तो बिल्कुल असली मालूम होता है। ये सिर्फ रंग और ब्रश का कमाल है। यहां तक कि दायर लाइन जो आप देख रही हैं ब्रश से डाली गई है। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है, मैंने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। अब तो तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक और शिद्दत इख्तियार कर गया है, नीमा मुस्कुराती हुई बोली। एलिस गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, क्या यह बात तुम्हारे लिए काबिल एतराज नहीं है कि मैं जाली नोट बनाता हूं? नहीं, हम अखलाकियात के कायल नहीं हैं। दुनिया का कारोबार अनोखे अंदाज में चल रहा है। चंद लोगों का तयन हम क्यों करें? आपने दुरुस्त कहा। मैं बरतानिया की काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। मेरा खानदान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन मैं उस नेक नाम खानदान का बदनसीब फर्द हूं। अच्छा, और ये बदनसीबी? वही बताने जा रहा हूं। मेरे वालिद मिस्टर ग्राहम लंदन की अदालत के जज थे, एक काबिल इज्जत शख्स, लेकिन उनके दुश्मनों ने मुझे 6 साल की उम्र में अगवा किया। वो मेरे वालिद से इंतकाम लेना चाहते थे। ओह, लेकिन उस दुश्मनी की बुनियाद क्या थी? चंद अफराद ने उनके हाथों से सजा पाई थी और उनके दुश्मन बन गए थे। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे जराइम के रास्ते पर डाल दिया गया। मुझे हर फन में ताक किया गया। मैं फितरी तौर पर मुसव्विर था, लेकिन मेरी फनकाराना सलाहियतों को दूसरा रंग दे दिया गया और इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। खूब, मैंने गर्दन हिला दी। मैंने हर किस्म का नोट डिजाइन किया और उन्होंने करोड़ों रुपए की जाली करेंसी छापी, लेकिन मुझे अपने किरदार से नफरत थी। मैं हमेशा उनके जाल से निकलने के लिए कोशा था।
और वो खामोश हो गया। और तुम निकल भागे? मैंने बात मुकम्मल की। मेरे इस सवाल पर उसने जिन निगाहों से मुझे देखा, उस वक्त मैं उनका मफहूम नहीं समझ सका था, लेकिन आज मैं उस मफहूम से पूरी तरह वाकिफ हूं। हाँ, मैं निकल भागा। और उन्होंने ताक़ुब किया? हाँ। वो खामोश हो गया। मेरे जहन में हांडी पक रही थी। इत्तेफाक से एक ऐसा आदमी हाथ लग गया था जो मेरे लिए इंतहाई करामत साबित हो सकता था, लेकिन इस करामत इंसान से फायदा किस तरह उठाया जाए? वो बेचारा तो खुद मसाइब का शिकार था। ताहम मैंने किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया और चंद साथ गौर करता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर वाकई दुख हुआ है मिस्टर एलिस, लेकिन तुम्हारा फन काबिल दात है। मुझे इस फन से शदीद नफरत है। अब हमने उसे मजीद न कुरेदा और उसे आराम करने का मशवरा दिया। नीमा ने उसे मेरे बेडरूम में भेज दिया। क्या ख्याल है मसूद, इस शख्स को हम अपने लिए काम करने पर तैयार कर सकते हैं? तवील काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे तैयार किस तरह किया जाए। हाँ, असल काम ये सोचना है। हम सोचेंगे, हमारे जहन इतने कुन तो नहीं हैं। इसके लिए हमें इसके साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए ताकि इखलाकी तौर पर वो हमारा गर्विदा हो जाए, नीमा ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल उसके बाद देर तक मैं नीमा के साथ रहा। हम दोनों मुख्तलिफ अंदाज से सोचते रहे। फिर सारे काम दूसरे दिन पर मुलतवी करके मैं उस फ्लैट पर चला आया। लेकिन दूसरी सुबह मैंने नाश्ता नीमा और एलिस के साथ ही किया था। एलिस काफी हद तक पुरसुकून नजर आ रहा था। जब किसी काम की तकमील होनी होती है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब एलिस? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तवील अरसे से मैं उन लोगों के चुंगल से निकल जाने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। यहां आकर मैंने सोचा कि अब इस प्रोग्राम को अमली जामा पहना ही दूं, और इसके लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। फिर जब मैंने अमली कदम उठाया तो मुझे सहारे भी मिलते चले गए। तुम लोगों का ताउन मेरे लिए जितना कीमती है मैं बयान नहीं कर सकता। बिलाशुबा हम आखिरी हुदूद तक तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। मैंने गुफ्तगू की इस इब्तिदा को गनीमत जाना और शुरू हो गया। मुझे यकीन है और इसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता। हर काम के लिए सिला जरूरी नहीं होता एलिस। हम तुम्हारी बेलौस मदद करना चाहते हैं। इसे इत्तेफाक कह लो कि हमारे हाथ भी साफ नहीं है। छोटे मोटे काम हम भी कर लिया करते हैं। तुम्हारी मुराद मुजरिमाना कार्रवाइयों से है क्या? उसने पूछा। हाँ डियर एलिस, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। ओह मेरे दोस्त, ये तुम्हारी साफ दिली की अलामत है। माशरे ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि अपनी अच्छी फितरत के बावजूद उसे बुराइयों की जानिब राग़िब होना पड़ता है। मैं इसे तुम्हारी मजबूरी ही समझता हूं, वरना जो लोग दिलों में हमदर्दी का ऐसा जज्बा रखते हों वो फितरी तौर पर बुरे नहीं हो सकते। हाँ, अब इसे तुम कुछ भी कह लो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर अचानक ही मैंने पूछा, तुम इन नोटों के लिए जो रंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, क्या वो आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं? हाँ, ज्यादा तो मुश्किल पेश नहीं आती। एक नोट की तैयारी में कितना वक्त लग जाता है? खासा, क्योंकि वो मास्टर नोट होता है, फिर उससे दूसरे रंगों की छपाई होती है। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? कोई खास बात नहीं है। दौलत के हुसूल का जज्बा किस दिल में नहीं होता। इसके अलावा हम माली तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं हैं। इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। छपे हुए नोटों का एक बड़ा जखीरा मेरी तहवील में है। तकरीबन $1 करोड़ की मालियत के नोट, जिन्हें मैंने चालाकी से उनके कब्जे से निकालकर पोशीदा कर लिया था। ये नोट आज भी मेरे पास हैं। नाश्ते पर हमारे हाथ रुक गए। नीमा की आंखों में कंदीलें चल उठी थीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे हमने खुद को संभाल लिया और नाश्ते में मसरूफ हो गए। तुमने ये नोट कहां छुपाए हुए हैं? एक महफूज जगह, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। उम्दा खबर है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? दौलत। जैसा कि तुमने कहा कि दौलत की जरूरत हर शख्स को होती है, मैं भी अपनी जिंदगी के लिए दौलत जरूरी समझता हूं। ये नोट मेरे लिए भी बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इनमें से आधी रकम तुम्हें देने को तैयार हूं। $50 लाख की रकम कम नहीं होती। तुम सारी जिंदगी ऐश व इशरत से गुजार सकते हो। हमें मंजूर है। इसके एवज हम तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने इस मौके पर कोई तकल्लुफ मुनासिब नहीं समझा था। मैं नोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन दोस्त, क्या तुम इन नोटों को इस मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हो? उसने पूछा, और मेरे होंठ सुकड़ गए। वाकई इस मौजू पर नहीं सोचा था। मेरा ख्याल है नहीं। इसके लिए तुम्हें यूरोप का सफर करना होगा। हाँ बिलाशुबा। तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ लंदन तक का सफर करो। वहां पहुंचकर हम इन्हें फैला देंगे और मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मावनत करूंगा। लंदन का सफर?
मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, लंदन। नोटों को तब्दील करने के बाद तुम यूरोप के दूसरे ममालिक की सैर को निकल जाना। जिंदगी इसी का नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने नीमा की सूरत देखी। नीमा की आंखों में ख्वाब रख्सा थे। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है एलिस, लेकिन क्या तुम्हें इन नोटों पर पूरा भरोसा है? क्या हम ये काम आसानी से कर सकते हैं? हर काम मेहनत तलब होता है। नोटों को लंदन ले जाने के लिए तुम्हें शदीद मेहनत करना होगी। रही इनके तब्दील होने की बात, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इनमें से कुछ नोट तो हमें यहीं तब्दील कराने होंगे। तुम्हारे यहां डॉलर का खुफिया कारोबार भी तो होता होगा। हाँ, छोटी मोटी रकम बड़ा कारोबार फंसा देगा, और फिर इस कदर खुले पैमाने पर काम करने वाली कोई पार्टी मौजूद भी नहीं है। मेरा भी यही मकसद है। तुम सफर के अखराजात और दूसरी जरूरतों के लिए तकरीबन $10,000 तब्दील करवा लो, ताकि सफर में हमें दिक्कत ना हो। हाँ, उम्दा ख्याल है, लेकिन डॉलर्स का वो जखीरा है कहाँ? तुम जिस वक्त कहोगे मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। उसे उस जगह से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना तुम्हारा काम है, एलिस ने लापरवाही से कहा, और हम दोनों ने उसके अल्फाज की सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया। नाश्ते की मेज से उठने के बाद मेरी और नीमा की एक मीटिंग हुई। मैं अंदाजा लगा चुका था कि नीमा जरूरत से ज्यादा खुश और मसरूर है। ये तो बड़ी उम्दा बात हुई। हाँ, बज़ाहिर, मैंने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? क्या तुम इस प्रोग्राम में कोई? ये बात नहीं नीमा, बस दूसरे बहुत से ख्यालात हैं। मसलन इस शख्स की सच्चाई। क्या वो मशकूक है? बज़ाहिर तो नहीं लगता। बातिन की गहराइयों में क्यों जा रहे हो मसूद? अगर गलत सूरत हाल पेश आएगी तो देखा जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। इसके अलावा नोटों का मामला रह जाता है। हाँ, ये भी तो देखना है कि उन नोटों की कैफियत क्या है। उन्हें तब्दील कराना आसान तो नहीं होगा, लेकिन यहां डॉलर का कारोबार करने वाले बेशुमार लोग हैं। उनसे राब्ता कायम करो जो इस कारोबार को पर्दे में करते हैं। कुछ कमीशन ही तो देना होगा। हाँ हाँ, ठीक है। बस ये सारे काम होने के बाद ही कोई फैसला कुन बात कही जा सकती है। और अगर ये सारे काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गए तो फिर यूरोप के हसीन शहर और हम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और नीमा मेरी गर्दन में झूल गई। वो बेहद मसरूर नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक हम दोनों खुशाइन तस्वुरात में डूबे रहे और फिर संभल गए। ये सारी बातें एक जगह मसूद, लेकिन इन सबसे अहम बात तो सोचो, नीमा ने कहा। और वो क्या है? मैंने सवाल किया। फर्ज करो अगर सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त निकलती हैं और एलिस करोड़ों डॉलर्स की रकम हमारे हवाले कर देता है, तो क्या उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लंदन या यूरोप के किसी शहर जाना जरूरी है? क्यों नहीं नीमा, ये बात तो पहले ही हो चुकी है, मैंने कहा। लेकिन इन्हें लंदन तक ले जाने के सिलसिले में क्या किया जाएगा? हाँ, ये तुम्हारा सवाल खासा अहम है। इसके लिए हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो जहानत से भरपूर हो और जिसमें हमारे फंसने का कोई इम्कान न रहे, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है, क्या इतनी बड़ी रकम मुंतकिल करना क्या आसान काम होगा? हाँ, यकीनन नहीं होगा। तब फिर क्या? इसके लिए हम कोई तरकीब सोचेंगे, और अगर हम ये काम ना कर सके तो हम में और आम लोगों में कोई फर्क ना रह जाएगा। ठीक है मसूद, लेकिन इसके लिए खास जिम्मेदारी के साथ कुछ करना होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा खेल जो अनोखी अहमियत का हामिल हो। नोटों को आम अंदाज में स्मगल करना मेरे ख्याल में खासा परेशान कुन रहेगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या वाकई एलिस के बनाए हुए नोट इतने मुकम्मल हैं कि हम इन्हें बासानी बाजार में ले जा सकते हैं। भाई, बात सिर्फ इस मुल्क की नहीं है। यूरोप में तो लोगों की निगाहें और ज्यादा तेज होती हैं। वो असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। इन हालात में मेरा मतलब तुम समझ रही होगी। हाँ, यकीनन। तो ये दूसरा प्रोग्राम तो हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तो ये अंदाजा लगाना है कि वो नोट किस कंडीशन में है, और जिस तरह से ये नोट हमने देखा वो सब भी इसी से मिलते जुलते हैं या इससे मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा यह भी है कि बाहर तौर एलिस की सच्चाई का अंदाजा करना भी जरूरी है। ठीक है, तो फिर इस सिलसिले में फौरी इक़दामात क्या कर रहे हो? नीमा ने पूछा। बस जैसा कि एलिस ने बताया कि वो नोट हमारी तहवील में देने को तैयार है, तो मैं इस काम पर सबसे पहले अमल करना चाहता हूं। ओह, लेकिन क्या तुम नोटों का जखीरा लेकर आओगे? हाँ नीमा, दरअसल मैं इसी अंदाज में काम करने का आदी हूं। जब तक कोई चीज अपनी तहवील में अपनी गिरफ्त में ना हो, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कामयाबी की यही दलील है, नीमा ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा। बस मैं एलिस से बात करूंगा, अगर मौका मिला तो आज ही, मैंने कहा, और नीमा मुस्कुराने लगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे इजाजत दो, दोपहर के बाद आऊंगा।
میرا خیال ہے دوپہر کا کھانا تم ایلس کے ساتھ کھا لینا، میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف رہوں گا، میں نے کہا، اور نیما نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ بلا شبہ میری مجرمانہ زندگی میں اتنا بڑا کام مجھے پہلی بار ملا تھا، مشکل بھی تھا اور اہم بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو مالی منافع حاصل ہونے والا تھا وہ اتنا تھا کہ میں آئندہ زندگی کے 20 سالوں میں بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتا تھا۔ وہاں سے سیدھا اپنے فلیٹ پر واپس آیا اور اپنے بستر پر دراز ہو کر ان حالات پر غور کرنے لگا۔ میرا ذہن مختلف ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ہر بات کو ذہن میں رکھا تھا۔ ایلس کی سچائی پر شبہ کرنا ذرا احمقانہ سی بات تھی۔ جس انداز میں وہ مجھے ملا تھا، اگر میں اس پر توجہ نہ دیتا تو ظاہر ہے وہ مجھ تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا، اور یہ سوچنا کہ وہ کس پروگرام کے تحت باقاعدہ میرے پاس آیا ہے ذرا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس کی کہی ہوئی بات، لیکن اس کا فیصلہ بھی جلدی ہو جاتا، اور اگر وہ نوٹ میرے حوالے کر دیتا تو گویا اب سارا معاملہ صرف اس بات تک رہ گیا تھا کہ نوٹ کیا میری تحویل میں آتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ نوٹوں کو نیما کے مکان پر منتقل کر دوں۔ نیما کا مکان ظاہر ہے میری ملکیت تھا، اور میں جانتا تھا کہ ابھی تک کوئی شخص اس سلسلے میں مشکوک نہیں ہے، چنانچہ اس طرف سے اطمینان تھا۔ بہت دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے دوسرے معاملات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کب تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا، اور پھر چونک پڑا۔ گھڑی دیکھی تو شدید حیرت ہوئی، کئی گھنٹے ہو چکے تھے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا، پھر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ کافی پینے کے بعد وہیں سے نیما کے مکان میں فون کیا۔ دوسری جانب نیما نے ہی فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو، اس کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو نیما۔ ہاں مسعود، کیا حال ہے؟ میں ایک ریسٹورنٹ سے بول رہا ہوں۔ ہمارے مہمان کا کیا حال ہے؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، کم گو اور کھویا کھویا انسان ہے، بہت مختصر گفتگو کرتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک کیا، میں تھوڑی دیر بعد پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نیما کے گھر پہنچ گیا اور ہم دونوں ایلس کے پاس۔ ایلس کے چہرے پر الجھن کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک غم آلود کیفیت۔ اس نے ہمیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، بڑی پھیکی مسکراہٹ تھی۔ ہیلو ایلس۔ جناب، کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی کی بات کر رہے ہیں شاید؟ ہاں، میں نے کہا، اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر افسردگی سے بولا، کچھ لوگ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں مسٹر مسعود، زمین انہیں کسی طور پر قبول نہیں کرتی۔ تم اتنی مایوسی کی گفتگو کیوں کر رہے ہو ایلس؟ نہیں جناب نہیں، میں جو کچھ سوچتا ہوں ٹھیک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ذات کیونکہ میرے لیے سکون کا باعث نہیں رہی، میں ہمیشہ تشنا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ کیا میں کسی کی توجہ کا مرکز رہا ہوں؟ کیا کوئی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ ایسے لوگ بھی نہیں ملے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی نگاہوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں پائی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے ایلس۔ نہیں جناب، براہ کرم افسوس نہ کریں، میں نہیں جانتا قصور کس کا ہے، میرے باپ کا، اس کے پیشے کا، یا میری تقدیر کا۔ لیکن اب تو تم حالات کی زنجیر توڑ چکے ہو، اب تو تم ان لوگوں کے چنگل سے نکل آئے ہو، میں نے کہا۔ شاید، وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کافی پلواؤں آپ دونوں کو؟ نیما نے اس گفتگو میں دخل دیا۔ ہاں ہاں ضرور۔ کیوں مسٹر ایلس؟ میں نے ایلس کو دیکھ کر کہا، اور اس نے گردن ہلاتی۔ نیما اٹھ کر چلی گئی۔ آپ لوگ بے حد ہمدرد ہیں، ایلس نیما کے جانے کے بعد بولا۔ شکریہ ایلس، ویسے زندگی کے اس رخ میں بھی تم عورت سے دور رہے؟ میں نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ دلچسپیاں تو ہوں گی۔ نہیں جناب، میں ہمیشہ کچھ لوگوں کا قیدی رہا ہوں، مجھے کبھی اتنی آزادی نہیں دی گئی کہ میں اپنے طور پر کچھ سوچ سکتا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ کیا تم نے انہیں ہمیشہ مشکوک رکھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرے اوپر دباؤ رکھا۔ دراصل ان کے ذہنوں میں ایک انتقامی جذبہ کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جہاں میری کوئی دلچسپی پاتے مجھے وہاں سے دور کر دیتے۔ اوہ، انوکھا انتقام تھا، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ ہاں جی، قصور میرے پاپا کا تھا، انہوں نے اپنے فرائض سے مجبور ہو کر انہیں سزائیں دی تھیں، لیکن شکار میں بنا۔ بہرحال مجھے افسوس ہے۔ اس کے بعد سے تم اپنے والدین سے کبھی نہیں ملے؟ کبھی نہیں۔ ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں کی؟ نہیں، میں ان سے بے خبر نہیں رہا، وہ لوگ تو اب مجھے بھول بھی چکے ہوں گے۔ اوہ، لیکن ایلس اب تو تم ان حالات سے نکل چکے ہو۔ ہاں،
मैं निकल चुका हूं। उसकी मजबूर मुस्कुराहट फिर उभर आई। तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, अब मैं खुश हूं, उसने मसनूई अंदाज में कहा, और मैंने महसूस किया कि नीमा दुरुस्त कहती है। वो अनोखी फितरत का इंसान है। मैं अब तुम्हारी फौरी मदद करना चाहता हूं एलिस। मैं खुद को पारसा जाहिर नहीं करूंगा। दरअसल मेरे जहन में माकूल दौलत हासिल करने का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही मुझे तुमसे हमदर्दी भी है। मैं तुम्हारी साफ गोई की कदर करता हूं मसूद। तब फिर तुम वो नोट मेरे हवाले कब कर रहे हो? जब तुम पसंद करो। क्या आज ही रात हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, एलिस ने बदस्तूर लापरवाही से कहा। लेकिन एलिस, वो नोट तुम्हारे किसी शनासा के पास हैं क्या? शनासा? हाँ, वीराने ही मेरे शनासा हो सकते हैं। वो मुस्कुराया। क्या मतलब? हाँ, एक इमारत है। कहा जाता है मुगल शहनशाहों ने वो इमारत बनवाई थी। अब तो वो खंडरात में बदल चुकी है। मैंने वो नोट उसी इमारत में छुपाए थे। ओह, क्या उसके नजदीक कोई खुश्क तालाब भी है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। खूब, उसे लाल बारा तरी कहते हैं। मुगलों की इमारत ही थी। महफूज तरीन जगह है, शहर से तकरीबन 30 मील दूर। हाँ, तकरीबन इतनी ही होगी। नोट किसी बैग में है, चमड़े के मखसूस थैले में है, जिन्हें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने थैले हैं? 10। ये सारे सवालात मैंने इसलिए नहीं किए कि उन्हें लाने के लिए प्रोग्राम तय कर लूं। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके लिए आपको किसी बंद गाड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए मिस्टर मसूद। ठीक है, बंदोबस्त हो जाएगा। तकरीबन 10 बजे हम यहां से चलेंगे। मैं 9:45 बजे पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा, और उसने गर्दन हिला दी। उसी वक्त नीमा कॉफी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हो गई। उसने मुस्कुराकर हम दोनों की तरफ देखा और फिर कॉफी बनाकर सर्व करने लगी। उसके बाद खामोशी से कॉफी पी गई और फिर मैंने नीमा को उठने का इशारा किया। हम दोनों बाहर निकल आए। मैंने नीमा को इस सिलसिले की सारी तफसीलात बता दी। लाल 12 तरी के वसी खंडरात रात की तारीकी में बेहद मुहीब लग रहे थे। एलिस बाहर का आदमी था और मशरकी रिवायात के बारे में उसे कुछ मालूमात नहीं थी, इसलिए उसके जहन में कोई खास बात नहीं होगी। लेकिन मैंने लाल बारादरी के खंडरात के बारे में अनोखी कहानियां सुनी हुई थीं। कुछ लोगों के चशमदीद वाकयात और कुछ रिवायतें इन खंडरात को बेहद खौफनाक बनाकर पेश करती थीं। इन्हें आसेब ज़दा करार दे दिया गया था और रात की तारीकी में सड़क पर आमद और रफ्त बेहद कम हुआ करती थी। लेकिन दौलत की कशिश इंसानी हवास पर बुरी तरह असरअंदाज होती है। मैंने इन सारी रिवायात को पसे पोश डाल दिया था। यूं भी मैं इन फरसूदा रिवायात से ज्यादा मुतासिर नहीं था, लेकिन इस वक्त तो मैं भी उनके बारे में सोच रहा था। हालांकि जूं जूं मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरे जहन में अनोखे तासुरात जाग रहे थे। फिर हम लाल बारादरी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। गाड़ी सड़क से उतारकर कच्चे पर खड़ी कर दी गई। ये वैन मैंने किराए पर हासिल की थी और मेरे ख्याल में मेरे लिए बेहद कारामद थी। बारादरी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हम बाएं समत मुड़ गए। इस जगह को हाथी खाना कहा जाता था। हाथी खाने तक जाने के लिए तकरीबन 12 सीढ़ियां उतरना पड़ती थीं। इसके दोनों जानिब 3-3 फुट की चौड़ी जगह थी, जिससे गुजरकर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। जरा सी भी लग़्ज़िश हो जाए तो 15-16 फुट की गहराई में जा पड़ो। चुनाचे एलिस हाथी खाने में जाने वाली सीढ़ियां तय करने लगा। हम दोनों के हाथों में लंबी लंबी टॉर्चें थीं, जिनसे हम उस हिस्से को मुनव्वर कर रहे थे। मैंने इस दौरान एलिस से कोई सवाल नहीं किया था। हाथी खाने का भयानक माहौल रगो पै में सर्द लहरें तोड़ा रहा था, लेकिन बहरहाल एलिस भी तो मौजूद था। हाथी खाने की इस कोठरी में जहां हाथियों की खुराक भरी होती है, दाखिल होकर हम रुक गए। तब एलिस ने एक तरफ रोशनी डाली और मैंने चमड़े के 2 बेरंग थैले देख लिए, जो ऊपर नीचे चुने हुए थे। एक एक लम्हा बदन सर्द कर रहा था। एक अनोखा एहसास सहन में जाग रहा था। बहरहाल हमने थैले लिए और संभल कर चलते हुए बाहर निकल आए। मैंने नीमा को इस सिलसिले की तफसील बता दी थी। चलें एलिस? मैंने पूछा। हाँ, उसने भारी आवाज में कहा और मैंने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एलिस पर अब मुझे पूरा एतमाद हो गया था। वो झूठा इंसान नहीं है। बस अब आखिरी बात रह गई थी, यानी नोट कैसे हैं। और दूसरे दिन ये मरहला भी तय हो गया। नोटों के हुसूल के बाद देर करना हिमाकत थी, चुनाचे मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। नोट हमने एहतियात से एक जगह पोशीदा कर दिए थे और एलिस हमारा पूरा मददगार था। दूसरे दिन मैंने खुफिया तौर पर डॉलर का कारोबार करने वाले एक एजेंट से $1000 के नोट बदलवा लिए और किसी को कोई शुबा ना हो सका। नोट बिल्कुल तसल्ली बख्श थे। फिर तीसरे दिन मैंने $5000 के नोट बदलवाए और एक बड़ी रकम मेरे पास जमा हो गई। नोटों के गलत होने का ख्याल तुम दिल से निकाल दो, एलिस ने कहा। हाँ एलिस, इस बात का यकीन मुझे हो गया है
کہ یہ نوٹ انتہائی شاندار ہیں، چنانچہ یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ تقریباً $7,000 میں بدلوا چکا ہوں، اور یہ رقم اتنی ہے کہ ہم آسانی سے ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ نوٹ کیا برطانیہ میں آسانی سے بدلوا سکیں گے؟ یہ ذمہ داری تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں ان کے چلانے میں ذرا سی بھی دقت اور پریشانی کا شکار ہونا پڑا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تم چاہو تو ان ڈالرز کو بینکوں میں بھی بدلوا کر دیکھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے ایلس، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تب ایلس میری صورت دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ان کو لے جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے اور کس طرح لے جاؤ گے؟ طریقہ کار، میں نے ایلس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں اپنے طور پر تو سوچ ہی رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، ایلس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ تمہیں جو کرنا ہے غور کر لینا کہ کیا تم مطمئن انداز میں یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ ترکیب کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ عرصے قبل، میرے خیال میں تقریباً 6 ماہ یا 5 ماہ قبل، ایک معزز جوڑا یہاں آیا تھا۔ عورت کا نام اینی کوک تھا اور مرد مسٹر ہڈسن۔ ان دونوں کا تعلق بھی برطانیہ کے ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن دونوں بدعنوانیوں کا شکار ہو گئے تھے اور ان کی مجبوریاں انہیں اس گروہ میں گھسیٹ لائیں۔ انہوں نے روپیہ کمانے کے لیے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن ہڈسن تیز مزاج انسان تھا۔ اینی کوک کی بے عزتی پر ایک دن وہ گروہ کے ارکان سے لڑ گیا اور دونوں کا قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں ضائع کر دی گئیں اور پھر کبھی ان کے بارے میں کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ اتفاق سے ان کے کاغذات اور پاسپورٹ اور دوسری چیزیں میرے پاس رہ گئیں۔ تمہارے پاس؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں ہیں؟ انہی تھیلوں میں سے ایک میں موجود ہیں۔ اچھا۔ ان دونوں کا تعلق بھی لندن کے ایک اچھے گھرانے سے تھا، اور تمہاری حکومت کو ابھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہڈسن یہاں کسی ٹریفک کے حادثے میں شکار ہو جائے تو اس کی لاش لندن لے جانے کے لیے اینی کو کوشش کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ میری مراد مس نیما سے تھی۔ اینی کو کی حیثیت سے وہ ہڈسن کی لاش برطانیہ لے جا سکتی ہیں۔ یہ لاش سرکاری تابوت میں ہوگی اور مس اینی کوک اس تابوت کے ساتھ ہوں گی۔ کام صرف یہ کرنا ہوگا کہ بالکل ایسا ہی تابوت اور ہوگا، جسے اس وقت تبدیل کر دیا جائے گا جب لاش کا تابوت جہاز پر لے جایا جائے گا۔ اوہ، میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی۔ ایلس کی تجویز لاجواب تھی۔ میں اس کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ اور دوسرے تابوت میں نے سرسراتی آواز میں کہا، دوسرے میں نوٹ ہوں گے۔ پھر لندن ایئرپورٹ پر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہاں حالات میں سنبھال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کوئی اور بہتر طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ہاں، لیکن ڈیئر ایلس، کام بے حد مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی تعداد میں نوٹ لے جانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے چند مشکلات بھی تو پیش آ سکتی ہیں۔ مثلاً، چلو ہم نے نیما کو میک اپ کر کے اینی کوک بنا دیا، لیکن ہڈسن؟ وہ کردار میں ادا کروں گا۔ تم؟ ہاں، میں۔ تم میرے لیے بھی پاسپورٹ وغیرہ کا بندوبست کر دینا۔ تمہارے روانہ ہونے کے فوراً بعد کسی دوسرے طیارے سے میں لندن پہنچ جاؤں گا اور ایئرپورٹ پر تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی لاش کی حیثیت سے تم خود کو پیش کرو گے؟ ہاں۔ تمہیں دقت نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں حب سے دم کر لیتا ہوں۔ وہ لوگ 100% مجھے لاش ہی کہیں گے، ایلس نے جواب دیا۔ ایلس کی گفتگو میں مجھے جگہ جگہ زخم نظر آ رہے تھے۔ کچھ بے ربط سی بات تھی۔ مشکل ترین مرحلوں کے لیے وہ ایسے انوکھے حل پیش کر رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن تھا، ایک عجیب سی کیفیت۔ نہ جانے وہ بیچارہ کس احساس کا شکار تھا۔ بہرحال یہ معاملات ہمارے درمیان طے ہو گئے اور میں سخت محنت میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام تر تعلقات اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ضروری مسائل حل کیے۔ چند ایسے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا جو اہمیت رکھتے تھے، انہیں انتہائی معقول معاوضہ پیش کیا۔ بہرحال یہ سارے کام مکمل کرانے میں تقریباً 15 دن صرف ہو گئے اور اب ہم اپنی کارروائی پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، یہاں تک کہ وہ آخری رات آ گئی جب ہمیں اپنے ڈرامے کو اسٹیج کرنا تھا۔ شہر کی ایک بھری سڑک کا انتخاب کیا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ مجھے اس ڈرامے میں صرف ایک تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ نیما کے چہرے پر اینی کوک کا میک اپ تھا اور ایلس مسٹر ہڈسن کے روپ میں اس کے ساتھ تھا۔ نیما اپنے ڈرامے کی پوری ریہرسل کر چکی تھی، چنانچہ ایک سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک ہڈسن زمین پر گر پڑا۔ اس نے 2-4 مرتبہ ہاتھ پاؤں رگڑے اور پھر سرد ہو گیا۔ نیما کی چیخ پر بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے ذمہ دار افراد بھی پہنچ گئے، اور چونکہ معاملہ غیر ملکی کا تھا
इसलिए खास तवज्जो दी गई। मैं भी तमाशाइयों में शरीक था। पुलिस की एक गाड़ी में मिस्टर हडसन को अस्पताल ले जाया गया। नीमा भी रोती सिसकती साथ थी। पूरी तवज्जो से मिस्टर हडसन की निगरानी की जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम ने उनका मुआयना करने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। खासी हंगामी कैफियत थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसर जमा हो गए थे। मौत के बारे में पूरी रिपोर्ट हासिल कर ली गई। बरतानवी सिफारत खाने को भी इत्तला दे दी गई। पासपोर्ट वगैरह मौजूद थे। नीमा ने सिसकते हुए बताया कि वो और उसका मंगेतर यहां सैर करने की गरज से आए थे। उसका मंगेतर हडसन कुछ बीमार था और इससे कबल भी एक बार उसे यही दौरा पड़ा था। ताज्जुब कुन रिपोर्ट डॉक्टर्स की थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस शख्स ने हब्स दम किया हुआ है। बहरहाल नीमा की दरखास्त पर लाश को लंदन पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया। ये बंदोबस्त सिफारत खाने ने ही किया था और नीमा को हर तरह की सहूलत फराम की गई। इस मौके पर मैं नीमा और हडसन के मकामी दोस्त की हैसियत से सामने आया और मैंने भी उन दोनों के साथ जाने की पेशकश कर दी। सारे काम इंतहाई तसल्ली बख्श तौर पर अंजाम दिए गए। आखिरी काम यह था कि मैं अपने मखसूस लोगों को, जिनको मैंने अपने काम के लिए तैयार किया था, वो ताबूत फराहम कर दूं जो हमें बदलना था। चुनाचे ये आखिरी काम भी धड़कते दिल से मैंने पाया तकमील को पहुंचा दिया। नोटों से भरा हुआ ताबूत उनके हवाले करके मैं नीमा के पास आ गया, जिसने मातमी लिबास पहना हुआ था और जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अब हमारी निगाहें लाश के ताबूत पर थीं, लेकिन फिर हमें उसे निगाहों से ओझल करना पड़ा। ताबूत जहाज में पहुंचा दिया गया था और फिर इंतहाई उजलत में हमारा कारकुन हमारे पास पहुंच गया। काम होशियारी से कर दिया गया है जनाब, उसने हमें इत्तला दी। शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा। मैंने नोटों का एक बंडल उसकी तरफ पड़ा दिया, जिसे उसने फुर्ती से लिबास में छुपा लिया। दूसरे ताबूत का क्या करूं? बस उसे किसी मुनासिब जगह छोड़ देना। फिलहाल वो कहां है? एक बड़ी बस में रखा हुआ है। तुमने प्रोग्राम के मुताबिक उसका ताला खोल दिया, ढक्कन भी खोल दिया है। बस तुम्हारा काम खत्म। अब तुम उसे जाया भी कर सकते हो, लेकिन देख लेना वो खाली भी है कि नहीं। बहुत बेहतर जनाब, कारकुन ने कहा और चला गया। मैं और मिस एनी कॉक या नीमा जहाज में आ गए। नीमा बेहतरीन अदाकारी कर रही थी, लेकिन कुछ घबरा भी रही थी। तैयारी ने परवाज शुरू कर दी। नीमा गुमसुम थी। फिर जब मैंने महसूस किया कि कोई हमारी जानिब मुतवज्जे नहीं है, तो मैंने नीमा को मुखातिब किया। तुम तो जरूरत से ज्यादा खामोश हो। यूं लगता है जैसे, ओह मसूद, मैं वाकई खौफजदा हूं। क्यों? बस बेशुमार ख्यालात हैं, जिनमें से एक सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो क्या? एलिस किस तरह लंदन पहुंचेगा? अगर वो ना पहुंच सका और ताबूत चेक कर लिया गया तो? नीमा ने कहा, इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा नीमा, उसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। बहरहाल एलिस चालाक आदमी है, मुमकिन है उसने पहले ही इंतजामात कर लिए हों। क्या तुम्हारी निगाहों में उसकी शख्सियत साफ है? नीमा ने सवाल किया और मैं पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है नीमा? मैंने हमेशा उसके अंदर एक मजलूमियत सी महसूस की है, खुद में गुम, खोया खोया, जैसे कोई बात सोच रहा हो। इसके अलावा बस मसूद क्या कहूं मैं, न जाने क्यों वो मुझे हमेशा पुरस्कार सा लगा है। यहां तक तो मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। आखिर क्यों? बस किरदार आप उलझते होते हैं, हालांकि उनमें कोई गहराई नहीं होती, लेकिन बस एक अनोखापन होता है। हाँ, ये तो ठीक है। इसके अलावा बाकी बातें सब ठीक थीं। बहरहाल उस वक्त तक परेशान नहीं होना जब तक कि कोई उलझन ना पेश आए, वरना सफर का मजा किरकिरा हो जाएगा। मजा? नीमा हंसने लगी। हाँ, क्यों, तुम्हें इख्तलाफ है? 100%। ये सफर सूली के रास्ते का सफर है। जब तक हम अपना काम मुकम्मल ना कर लें, पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? नीमा ने कहा और मैं खामोश हो गया। नीमा काफी हद तक बात दुरुस्त कह रही थी। वाकई जब तक हम लंदन कस्टम से ना निकल जाएं, ये किस तरह कह सकते हैं कि हम खतरात से दूर हो गए? नीमा से गुफ्तगू के बाद तो बहुत से वसवसे मेरे जहन में भी जाग उठे थे। वाकई अगर एलिस बर वक्त लंदन एयरपोर्ट ना पहुंच सका तो? मैं हालात पर गौर करने लगा। एलिस एक ताबूत में बंद है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। ताबूत पुलिस के हाथ लग सकता है, या कोई भी ऐसी बात। मुमकिन है उसे दूसरे तैयारे तक पहुंचने में देर हो जाए। हर तरह से एक ही खतरा सामने आ जाता है। लंदन एयरपोर्ट पर कस्टम चेकिंग के दौरान क्या होगा? सारी जिम्मेदारी नीमा पर आ पड़ी थी। हो सकता है कि बर वक्त कोई इंतजाम ना हो सके। ऐसी सूरत में नीमा 100% उस ताबूत की जिम्मेदार थी, क्योंकि वही हडसन की बेवा की हैसियत से सफर कर रही थी। बहरहाल इस सफर में घुटन भी थी, खौफ भी था और परेशानी भी बराबर थी। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर मुझसे वो मुखातिब हुई।
मेरा ख्याल है अब तुम परेशानी का शिकार हो गए हो। इस कदर तो नहीं नीमा, लेकिन बहरहाल तुम्हारी सोच वजन रखती है। क्या फर्क पड़ता है मसूद? बहरहाल बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अगर खतरात से गुजरना पड़ रहा है तो ठीक है। हाँ, ये भी दुरुस्त है। लंदन तक का सफर जिन तसव्वुरात और ख्यालात में गुजरा वो सुहाने रूह थे। फिर तैयारा लंदन एयरपोर्ट पहुंच गया। अब हम किसी हद तक निडर हो गए थे। नीमा ने एक तजवीज़ पेश की। उसने कहा कि मैं अलग रहकर हालात संभाल लूंगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मसूद, सोचो तो सही। नहीं नीमा, मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। हम दोनों फंस गए तो बेदस्तो पा होकर रह जाएंगे। बेहतर है कि तुम दूर रहकर निगाह रखो। नहीं नीमा, मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। बराए करम तुम इसके लिए मुझे मजबूर ना करो। जो होगा साथ ही भुगतेंगे। ओह, तुम जिद कर रहे हो। अंदाजा लगा लो, एलिस का कोई वजूद नहीं है। वो किसी आफाकी जरिए से तो यहां नहीं पहुंच सकेगा। मुमकिन है उसने कुछ और। मैं अचानक खामोश हो गया। 2 कस्टम्स वाले हमारी जानिब आ रहे थे। खुश्क चेहरे वाले अफसर थे जिनकी आंखों में जहानत की चमक थी। न जाने क्यों मेरे दिल में खौफ सा उभर आया। मिस एनीकॉक, उनमें से एक अफसर ने हाथ में पकड़े कागज को देखते हुए सवाल किया। जी मैं हूं। मिस्टर हडसन की लाश आप ही लाई हैं? जी हां, वो मेरा मंगेतर था, नीमा ने सिसकी लेकर कहा। बराए करम हमारे साथ तशरीफ लाएं, अफसर ने कहा, और नीमा के असाब में तनाव पैदा हो गया। तब मैंने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम मसूद रिजवी है। मिस एनीकॉक एशिया में मेरी मेहमान रही थीं। मैं इसीलिए इनके साथ यहां आया हूं। ठीक है, आप भी तशरीफ लाइए। अफसर ने मुझे इजाजत दे दी और फिर हम दोनों उसके साथ चल पड़े। कोई गड़बड़ हो गई, मेरा दिल कह रहा था। जो दरअसल हमारा ताबूत था और जिसका मुंह खुल जाने के बाद हमारी असलियत वाज़ेह होने वाली थी। चंद दूसरे अफसरान वहां खड़े हुए थे। मिस एनीकॉक, हमारे साथ लाने वाले एक अफसर ने हमारा तारुफ कराया, और ये इनके एशियाई दोस्त हैं, मसूद रिजवी। हेलो, अफसर ने खुश इखलाकी से कहा और हमें बैठने की पेशकश की। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं मिस कॉक, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम गमज़दा मुसाफिरों के साथ भी वो सलूक नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए, और इसकी वजह समाज दुश्मन अनासिर हैं जो नित नए तरीकों से हुकूमत को धोखा देने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। अभी चंद रोज कबल ही एक ऐसे ताबूत के अंदर मौजूद लाश के मुर्दा बदन में अफयून की भारी मिक़दार मौजूद पाई गई। अब बताइए हम क्या करें? लोग मौत के बाद भी मजाक जारी रखते हैं। चुनाचे मिस कॉक, हमारी ख्वाहिश है कि हम आपकी इजाजत से इस ताबूत को खोलकर लाश का एक मशीनी जायजा ले लें। क्या आप एक अच्छे शहरी की मानिंद हमसे ताउन करेंगी? ओह, नीमा रो पड़ी, शायद खौफ से, लेकिन मैंने आगे बढ़कर सहारा दिया। कानून से ताउन फर्ज है मिस कॉक, लेकिन जनाब क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हम इस ताबूत को ना खोलें? हम आपके इत्मीनान के लिए हरगिज़ नहीं जनाब। हम इखलाकी कदरों को भी अहमियत देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमारे फराइज हैं। बराए करम आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। अफसर ने एक फार्म नीमा की तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों ही को एहसास हो गया कि हम पूरी तरह फंस गए। मेरा जहन सोचने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने ऊपर से ये इल्जाम दूर करें, और इसके लिए एक ही तरकीब कारगर थी, यही जो हकीकत थी, यानी ताबूत बदल दिया गया। हालांकि ये एक मामूली कोशिश थी, लेकिन बहरहाल हाथ पांव मारने के लिए एक रास्ता तो था। वो बुरा वक्त आ गया था जिसका खौफ हमें था। हमारी आंखों में तारीकी छाई हुई थी। बहरहाल नीमा ने लरसते हाथों से फार्म पर दस्तखत कर दिए। दूसरी तरफ ताबूत को मशीन पर ले जाने की कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। हमें भी साथ आने की दावत दी गई, लेकिन मैंने माजरत कर ली। आप लोग अपना फर्ज पूरा करें। मेरा ख्याल है कि मिस एनीकॉक को किसी और आजमाइश में न डालें, मैंने कहा, और अफसरों ने गर्दनें हिला दी। ताबूत को मशीनी जराए से खोला जाने लगा। मैं और नीमा पत्थर के बुतों की मानिंद साकित बैठे हुए थे। आने वाला हर लम्हा हमारी मौत था। मेरी निगाहें अफसरों पर जमी हुई थीं। न जाने वो क्या कार्रवाई कर रहे थे। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उनके नजदीक जाऊं, लेकिन अफसरों के चेहरों पर सुकून थे। तकरीबन 20 मिनट तक वो मसरूफ रहे। फिर ताबूत का ढकना बंद कर दिया गया। ये 20 मिनट, उफ, ये 20 मिनट हमारे ऊपर किस कदर भारी थे, बयान नहीं किया जा सकता। एक एक लम्हा हथौड़ों की तरह जहन पर ज़र्ब लगा रहा था। तब एक ऑफिसर हमारी तरफ बढ़ा और हमारी आंखें बंद होने लगीं। वो ऑफिसर हमें मौत का फरिश्ता महसूस हो रहा था जो हमारी रूह कब्ज करने को आ रहा था। तब ऑफिसर नीमा के सामने झुका। ताबूत को अभी बाहर पहुंचा दिया जाएगा। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं।
और आपके ताउन के शुक्रगुजार भी। कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे ऑफिसर तंज कर रहा हो। मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। ऑफिसर ने कागजात हमारे हवाले कर दिए थे, लेकिन वही हुआ जो उसने कहा था, और ये नाकाबिले यकीन बात थी। अफसरों ने ताबूत में क्या देखा, न जाने उन्हें क्या दिखा। ताबूत बाहर ले जाया गया तो हम भी साथ साथ थे। नीमा के हवास साथ ना दे रहे थे। उसने मेरे बाजुओं का सहारा ले लिया था। मसूद ये क्या हुआ? खुदा जाने। मैंने भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। क्या तुम भी तजिया नहीं कर सके? क्या तजिया करूं? मेरे तो जहन में एक ख्याल है। वो क्या है? शायद उन लोगों ने धोखा किया। किसने? जिनसे तुमने ताबूत बदलने की बात की थी। उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया और रकम ऐंठ ली। हाँ मुमकिन है, लेकिन एलिस कहां मर गया? उसने तो हमें मरवा ही दिया था। यह भी अब पूछने की बात है? क्या मतलब? इतनी देर ताबूत में रहने के बाद वो अब सचमुच मर गया होगा। ओ खुदा की पनाह, तुम सच ही कह रही हो। लेकिन इस तरह तो। ओ नीमा, मेरे ख्याल में उन फर्शनास लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन नोटों का ताबूत? नीमा एक सिसकी लेकर बोली। जहन्नुम में जाए, अब लंदन तक तो आ ही गए हैं, यहां तकदीर आजमाई करेंगे। कोई मुश्किल कम नहीं है। नीमा एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ताबूत को बाहर पहुंचा दिया गया और जो ही हम उसके करीब पहुंचे, एक सियाह रंग की वैन हमारे पास पहुंच गई। ड्राइविंग सीट पर से जो शख्स नीचे उतरा, उसे देखकर हमारे हवास बिल्कुल ही साथ छोड़ गए। वो एलिस था। नीमा भी पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसने एयरपोर्ट के खलासियों की मदद से ताबूत वैन में रखवाया और फिर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, आइए आप लोग भी आ जाइए। आओ नीमा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, और नीमा बादल नाखास्ता वैन में बैठ गई। उसके नजदीक ही मैं भी बैठ गया। एलिस ने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम दोनों के जहन में ज्वालामुखी खोल रहा था। वैन आगे बढ़ते ही मैंने कहा, एलिस अगर तुम नहीं चाहते कि दिमाग की रगें फटने से हमारी मौत वाक़ई हो जाए तो? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। तो हमें हकीकत हाल बता दो। तो अपने मोहसिनों का मैं बुरा कब चाहूंगा? एलिस ने जवाब दिया। तो बताओ ताबूत में क्या है? वही जो हम लाए थे, गोया किसी मिस्टर हडसन की लाश। मैंने कहा। ओह, ये कैसे मुमकिन है? ताबूत तो बदल दिया गया था। बदल दिया गया था? हाँ, लेकिन दूसरे ताबूत में क्या था? नोट। क्या ये मानने वाली बात है एलिस? मैं समझा नहीं। कस्टम हुक्काम आंखों से माजूर नहीं थे, ना ही उन लोगों से हमारे कुछ ताल्लुकात थे कि वो हमारे साथ रियायत कर गए। लेकिन मैंने आपसे वादा भी तो किया था मिस्टर मसूद कि कस्टम हाउस के मामलात मैं संभाल लूंगा। हाँ बेशक, लेकिन तुम कस्टम हाउस में मौजूद नहीं थे। मैं अपने काम में मसरूफ था। अब इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। आप लोगों को मैंने किसी तकलीफ से दो चार तो नहीं होने दिया, उसने कहा। और उसकी बात माकूल थी, लेकिन जाहिर है मेरा जहन साफ नहीं था। मैं कस्टम हुक्काम में उलझा हुआ था। वो लोग मुतमईन किस तरह हुए? उन्होंने ताबूत में क्या देखा? मैंने नीमा की तरफ देखा। उसका चेहरा भी उलझनों का शिकार था। फिर हम दोनों चौंक पड़े। लेकिन अब तुम कहां जा रहे हो एलिस? अपनी रिहाइशगाह पर। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तवील अरसे तक आपका मेहमान रहा हूं। क्या अब आप लोग मेरे मेहमान नहीं होंगे? क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं आपको लंदन और उसके नवा की सैर कराऊंगा, और उसके बाद आप यूरोप की सैर का आगाज करें, जहां जी चाहें जाएं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वैन बरकरफ्तारी से एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। लंदन देखने का बेहद शौक था, लेकिन जहनी कैफियत किसी तरफ मुतवज्जे होने नहीं दे रही थी। हम एक छोटे से खुशनुमा बंगले में दाखिल हो गए। एलिस ने वैन रोक दी और फिर वो नीचे उतर कर बोला, एशियाई मेहमानों को मैं अपनी इस छोटी सी रिहाइशगाह में खुश आमदीद कहता हूं। क्या ताबूत नहीं उतारोगे एलिस? मैंने पूछा। क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसे अभी उतार लो और खोलकर मुझे दिखा दो। ओह हाँ, जरूर। इस ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फर्ज है। लेकिन बराह करम, क्या आप बताना पसंद करेंगे मिस्टर मसूद कि आप क्या सोच रहे हैं? जो मैं सोच रहा हूं एलिस, उसे सुनकर तुम खुश नहीं होगे। मैं वादा करता हूं कि नाखुश भी नहीं होगा। तब मेरा ख्याल है कि हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं। कोई ऐसा मंसूबा जो तुम्हारे जहन में पहले से हो। मुमकिन है ताबूत में सचमुच किसी मिस्टर हडसन की लाश मौजूद हो। ओह, हालात के तहत यह कैसे मुमकिन है? जो कुछ हुआ है तुम्हारे इल्म में है। मिस्टर हडसन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ताबूत में लाश मौजूद नहीं है। आओ ताबूत उतार लें।
اس نے کہا اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں نے مل کر تابوت اتارا اور اندر لے گئے۔ نیما ساتھ تھی۔ کیا اس عمارت میں اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے اندر پہنچ کر پوچھا۔ نہیں، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تعجب ہے، لیکن یہ اندر سے صاف ستھری ہے۔ ہاں، ہر چیز پر تعجب نہ کریں۔ اب آپ اس تابوت کو کھول لیں، ایلس نے کہا، اور میں نے بے قراری سے تابوت کا ڈھکن اٹھا لیا۔ اندر نوٹ چنے ہوئے تھے۔ میں ان نوٹوں کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ نیما بھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حسب وعدہ اس میں سے آدھے نوٹ آپ لوگوں کے ہیں۔ انہیں چلانے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کی آپ کی رہائش گاہ دکھا دوں۔ عمارت کا ایک خوبصورت بڑا کمرہ اس نے ہمارے لیے مخصوص کر دیا۔ نوٹوں کا ایک بڑا حصہ اس نے ہمارے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کار بھی مہیا کر دی۔ نہ جانے کیوں یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، بے حد عجیب۔ اس عمارت میں پہلی رات گزارتے ہوئے نیما نے بھی یہی بات کہی۔ مسعود، کیا یہ سب کچھ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ کیا واقعی؟ صرف ایک بات ذہن میں الجھی ہوئی ہے نیما، میں نے پریشانی سے کہا۔ کیا؟ کسٹم حکام کو کیا ہوا تھا؟ خدا جانے کیا ہوا تھا، نیما نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دیانتداری سے ہماری رقم ہمارے حوالے کر دی ہے۔ میرا خیال ہے نیما اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے کہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ یوں بھی اب مہمان نوازی کا جواز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا تذکرہ کرو گے ایلس سے؟ وہ انکار کر دے گا۔ ہاں، لیکن اس سے معذرت کر لیں گے۔ کیوں نہ خاموشی سے نکلا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا؟ میرا مطلب ہے نقدی اور لندن سے نکلنا بھی تو مشکل ہوگا، ایلس سے خوفزدہ ہو کر۔ نہیں، لیکن سوچ لو، وہ ہمیں تلاش کر لے گا۔ ہاں، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر ایک تجویز کے تحت کہا، تب پھر نیما ہم 2-3 دن یہاں گزاریں گے اور اس دوران ہم یہ نوٹ بینکوں میں پہنچا دیں گے اور ان کے ٹریولر چیک بنوا لیں گے۔ کچھ رقم یہیں بینکوں میں رہنے دیں گے، کہیں سے بھی یہ رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ اس کام کے مکمل کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم دونوں اس تجویز پر متفق ہو گئے اور میں نے دوسرے ہی دن اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ایلس نے ہمارے لیے بہترین سہولتیں مہیا کی تھیں۔ وہ خود بہت کم گھر میں رہتا تھا۔ میں جس بینک میں نوٹ لے کر گیا وہاں کسی نے توجہ نہیں دی، کسی کو نوٹوں کے نقلی ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال 3-4 دن کے اندر یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس شام ایلس گھر میں موجود تھا۔ میں نے اس سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کو ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ایلس نے ہمارا پرجوش استقبال کیا اور بڑے خلوص سے مسکرایا۔ ہیلو مسٹر مسعود۔ ہیلو ایلس۔ بھائی، اب تو تمہارا مہمان بنے کئی دن ہو گئے ہیں، اب ہمیں اجازت دو۔ مجھے علم تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ کیا علم تھا؟ یہی کہ آپ لوگ اب جانا چاہتے ہیں۔ اوہ، تم ہم پر نگاہ رکھ رہے تھے؟ نہیں، میرے دوست کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ دوستوں پر کوئی نگاہ رکھتا ہے کیا؟ اس نے ممنون لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہیں کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ہم پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ایلس؟ بس میرے کمرے تک، اس نے کہا اور ہم دونوں اٹھ گئے۔ ایلس کے ساتھ میں اور نیما اس کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں تابوت پڑا ہوا تھا، وہی تابوت جس میں نوٹ لائے تھے۔ اس کے گرد بڑی کرسیوں پر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم بیٹھ گئے۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسٹر مسعود اور مس نیما۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک مختصر کہانی سناؤں گا۔ میں دنیا کا بدترین انسان ہوں دوستو۔ میں نے پہلے بھی اپنی کہانی کا ایک مختصر حصہ سنایا تھا جو 100% سچا تھا۔ میرا خاندان برطانیہ کا مشہور خاندان ہے، لیکن مجھے اس خاندان کا سرمایہ نہیں مل سکا کیونکہ میرے باپ کے دشمنوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر انہوں نے میرے باپ کو اطلاع بھی دی کہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے بجائے جرائم کے راستے پر ڈالیں گے۔ اس واقعے کو کافی شہرت ملی تھی۔ پولیس نے مجھے تلاش کرنے کی کافی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی، اور ایک طویل عرصہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ میں ان کی سازش سے لا علم تھا، اور جب مجھ پر یہ سازش منکشف ہوئی تو میں اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا باپ کچھ اور عزت اور شہرت حاصل کر چکا تھا۔ میں نے جب اس سے اپنا تعارف کرایا تو وہ بھونچکا رہ گیا، لیکن مجھے اس خاندان میں قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس خاندان میں کسی ایسے انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا رونا رویا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ میں اپنے باپ کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب میں مایوس ہو گیا
और इसी मायूसी ने मेरे अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा किया। मैंने उस ग्रोह से बगावत कर दी और उसके कई मेंबर मेरे हाथों मारे गए। मैं उन लोगों का ताक़ुब करता हुआ ही तुम्हारे मुल्क पहुंचा था। वहां मैं उनका शिकार हो गया। तुम? मैं ताज्जुब से चौंक पड़ा। हाँ, उस रात ग्रोह के कुछ अफराद मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो गए और रस्सी के फंदे के जरिए मुझे हलाक कर दिया गया। हलाक कर दिया गया? नीमा चौंक पड़ी। जी मिस नीमा, उस वक्त मैं मुर्दा था जब आपने मुझे पाया। लेकिन मेरी रूह ने यह मौत कबूल नहीं की और मैंने आपके सामने आंखें खोल दी। जिंदगी में मुझे अपने खानदान में जगह नहीं मिली, लेकिन मौत के बाद मैं उस खानदान में रहना चाहता था। तो तुम जिंदा नहीं हो? मैंने थूक निकलते हुए पूछा। नहीं, वो अफसुर्दगी से बोला। मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे मेरे आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए और इसके लिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है। लेकिन मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, रूह पर भी कुछ पाबंदियां होती हैं। मैं हर एक को अपना हाल नहीं सुना सकता था। ये बेपनाह दौलत मैंने उन लोगों के दरमियान रहकर हासिल की है। ये डॉलर असली हैं और इनमें कोई नोट जाली नहीं है। मैं आपके काम आया हूं, इसलिए आप लोग मेरे काम आए। ओह, लेकिन एलिस, ताबूत में मेरी लाश ही थी। असली लाश देखकर कस्टम हुक्काम मुतमईन हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने ताबूत खाली कर दिया। और ये नोट? मैंने अर्ज किया ना, ये मेरी मिल्कियत हैं। आपको जिंदगी के किसी हिस्से में नोटों की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मेरा खानदान बहुत मशहूर है। अब ये आपका काम है कि मुझे खामोशी से वहां दफन कर दें। मेरा काम खत्म हो चुका है और अब आपका इखलाकी फर्ज है कि आप एक बदनसीब की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वो उठा और ताबूत में जाकर लेट गया। नीमा दहशत से मुझसे चिमट गई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। बमुश्किल तमाम मैंने उसे सहारा दिया और फिर मैंने ताबूत में लेटे हुए एलिस को देखा। उसका चेहरा बदरौनक था और जिंदगी की कोई रमक उसके वजूद में मौजूद नहीं थी।